Ramnath is an Aghori, most extreme of the many sects among the sadhus, and the most feared as well. The burning grounds where Hindus cremate their dead is for the Aghori a place to meditate in. What others believe to be the abode of ghosts and evil spirits is the home for Ramnath. Aghoris believe that God imbues everything, the best and the worst in the world. For them, nothing is profane, everything is sacred. Of his few possessions, the most important is this bowl, shaped out of a human skull and the real sign of an Aghori. The Aghoris were once a powerful group amongst the sadhus in India. Today, Ramnath is one of a handful who still leads this unusual life. एक तो बचपन से लगन है अपने को वैसे काम करने का जो कोई नहीं करता है ना। कठिन से कठिन काम करना अपना शुरू से मतलब इसी में अपना चॉइस रहा है मेरा। जैसा सुनता आ रहा था कि अघोर साधक बहुत सिद्ध साधक होते हैं, बहुत कठिन तपस्या है, तो जो कठिन सुना तो अपने को भी लगन लगी थोड़ा देखे कैसा कठिन है। तो कठिनता को जानने के लिए मैंने इस रास्ते को अपनाया। और ये जो हमारी क्रिया है ये 12 साल की होती है। 12 साल के बाद में साधक जो है वो सिद्ध बन जाता है। Hindus believe that the human soul reincarnates, life after life, in an endless cycle of death and rebirth. The ultimate goal is to liberate themselves from this cycle to achieve salvation. My name is R.C. Pant. I have brought my mother to this holy place since we Hindus have got a special faith in Haridwar and this holy river Ganga. That's why we have brought this cross to this holy place for cremation. Rituals that surround death are crucial to Hindus to ensure that the pious have an easy passage to the afterlife. For the Aghori, the choice of the cremation ground is not a coincidence, and he marks it off on his own. मैं तो सन का बादशाह हूँ। यहाँ क्या कमी है मेरे को? यहाँ तो कपड़े वो जैसे ये है, चाहे जो चढ़ा के चला जाता है, खाना पीना उसी को उठा के ला के खाता पीता हूँ। ये अभी जो पीछे डेड बॉडी जल रही है, इसी का ये कफन उठा के लाया हूँ। और इसको इसमें अपने को कोई भय भूय नहीं है, कुछ भी भय किस बात की है? हम तो रात दिन यहाँ रहने वाले हैं, अपना तो कर्म ही ऐसा है। The cremation grounds provide Ramnath with all that he needs for his rituals. Fire, ash, even wood to stoke the sacred fire comes from the unburnt pyres. The fire has reduced the corpse to ashes, and the body returns to the elements from which it was made. ये तो हम अघोरियों का वस्त्र है, वस्त्र का रूप है। और ये स्वयं शिवजी इसको अपने इस्तेमाल करते। तो जब शिव जी स्वयं इसको व्यवहार में लाते
तो एक अघोरी जो उनका बच्चा है वो तो ज़रूर इसको व्यवहार में लाएगा, और ये अघोरी के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरा बात, ये पंच महाभूतों का बना हुआ ऐसा सम्मिश्रण है जिसको लेप करने से ना कोई रोग ना बीमारी, शरीर स्वस्थ, ना कोई मच्छर काटता, नहीं कोई कीड़े मकोड़े लगते। इससे अपना रूप जो है स्वयं शिव जैसा बनता है, और शिव जैसा रूप बनाकर शिव का भजन करने में जो आनंद मिलता है, वैसे फिर दूसरे में आनंद नहीं आएगा वैसा। Shiva is the most powerful of the Hindu gods, the creator, sustainer, and destroyer of life. Shiva is also the lord of the cremation grounds, and is often shown like an Aghori smeared in ash and holding a bowl made from a human skull. To become an Aghori, Ramnath needed a guru, a tantric master who had himself been through the arduous rituals. 10 years ago, he met Satya Narayan. दलीदर अवस्था में थे ये, जिस टाइम मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि आप मुझे दीक्षा दोगे गुरुजी। तो मैंने इनसे कहा कि दीक्षा तो मिलेगी आपको, मगर कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम दीक्षा जब देते हैं नवरात्रों में देंगे, तब तक आप रुके रहिए। तो ये रुके रहे तब तक। न जाना मैं जोगं यपने पूजा, न तो हम सदा संभवे चतुर्भुजं। ये फिर मेरे पास जस्ट मैंने इनको दीक्षा दी तो इनको कान में मंत्र फूके जाते हैं। वो फूकने के बाद फिर मैंने इनसे पूछा भी आप किस तरह की दीक्षा मेरे से लेना चाहते हैं, मुझे बतलाइए। तो इन्होंने मेरे से कहा कि मैं अघोर पंथ में जाना चाहता हूँ, मैं अघोरी बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, अघोरी बनते हो तो फिर कपाल लाओ आप ढूंढ के। तो ये कपाल के लिए फिर ये गए। Although most Hindus are cremated, the bodies of holy men and sadhus are laid to rest in the waters of the sacred rivers. Ramnath spent days scouring the banks of the holy Ganga, looking for a well-preserved skull.
तो अभी आता है साला। रिश्ते में कपाल है, मैंने कहा ये तो जो कपाल है तो कंकाल का है, अब इसके को खप्पर बनाना है। A human skull is transformed into a bowl. With the mantra of initiation given to him by his guru, this was the only other tool that Ramnath needed to take on the darkness of the cremation ground. As an Aghori, Ramnath worships the third face of Shiva, the face of destruction. In appearance, in the rituals, and in the places they haunt, every effort is directed at being one with Shiva, at mimicking every action. ये भगवान शंकर का पात्र है, ये हमारा नहीं है और ये साधा का भी पात्र नहीं है, भगवान शंकर का पात्र है। और जो अघोरी साधा है, जो शिव के सानिध्य में है, उसको खप्पर में ही खाना, खप्पर में ही पीना, खप्पर की ही पूजा करना, वही सब कुछ है उसके लिए। जैसे एक पत्थर के मूर्ति के अंदर में संसार आस्था बना के मंदिर में जाकर उसको नमस्कार करता है, वैसे एक अघोरी के लिए वो एक आस्था है। Over the years, Ramnath has undergone a series of rituals under his guru's instructions. Each cycle is meant to enhance his powers, and this time he is maintaining silence for 41 days. लो भाई
Every day and through every act, the Aghori blurs the rules of pure and impure, the rules by which the ordinary Hindu lives his life. By actively breaking the taboos of what is considered unclean and dangerous, the Aghori hopes to gain magical powers. मगर हम तो अघोरी साधक हैं, हमको तो संसार में किसी से नफरत नहीं है, किसी से घृणा नहीं। घृणा किस बात की है? साधक को जब घृणा हो जाएगा फिर वो साधना क्या करेगा? तो कुत्ता भी आके खाएगा, किसी ने जूठा ही खिला दिया, अगर इसे हम घृणा करेंगे तो हमारा साधना तो नहीं होगा ना। Only a few miles from the cremation grounds, on the banks of the Ganges, night is greeted with prayer. The high caste priests propitiate the gods with fire. Ramnath too waits for night, but his temple is the cremation ground, and his sacred fire can only be found in the funeral pyre. क्योंकि 12 से 2 बजे तक रात्रि के अर्धरात्रि तक भूत आशा होता है, इसलिए मनुष्य जाते हुए डरता है। और अघोरी जो है उस टाइम साधना करता है, क्योंकि कोई उसे रोकने वाला नहीं है, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा शमशान में ही करता है। अपर में जो मिल जाए उसको खाते। दूसरी बात, जहाँ तक ये मल मूत्र खाने का सवाल है, ये आदमी के मांस खाने का सवाल है, तो ऐसा गुरु लोगों ने कहा है और मेरा सेल्फ का अनुभव है, जैसे मुर्गा खाया तो वही बात और आदमी खाया तो वही बात, मांस दोनों का बराबर है। उसमें स्वाद की बात नहीं है, एक ऐसा शरीर के अंदर में एक उत्तेजना ऐसी पैदा होती है जो हबस हो जाती है कि अभी चाहिए, और वो उत्तेजना में अपने आप को खबर नहीं होती है, और अपने अंदर में तो पावर भी इतना है, पूरा लाश को भी निकाल कर मैं खा सकता हूँ। Today is the last day of Ramnath's 41-day meditation. It marks the end of one more step in his passage towards becoming an accomplished one, in becoming a real Aghori.
His day begins with a purifying dip in the icy waters of the holy Ganges. Ramnath decorates the fire pit, the Aghori temple, well before Guru Satyanarayan's arrival. जय गुरु महाराज लाज रखियो। जय हो मसान की मरघट मैया। जय मती मारा। He pays homage to the gods and goddesses of death, saluting each by name. Jai Baba Bhutnath, victory to Baba Bhutnath. Jai Ogarnath, Jai Magad Ki Maya. आग चले भंडा जने माता मरी सिंगाकर माता मरी कुछ मसन शब्द उनसे गुआन लोग चने में मुकदा कहाँ हक माता मरी देवभूत के छूटे प्राण अब देखो माता मरी तेरे मंत्र शक्ति भाई गुरु परमेश्वर मेरे गुरु का सबक The Guru whispers the mantras, secret magical words which are believed to be the source of great energy. These will finally evoke the powers of the gods in Ramnath. देवी देवताओं का वेग आता है जो कि उनको महसूस होता है। जो भगवान शिव हैं या और देवी देवता हैं वो उनके पास बैठे हों, उनके शरीर में उसका वेग आता है, उनसे बातें करते हैं। चलो को उठाओ, खप्पर उठाओ। अलग जगह अलग जगाते हैं क्योंकि देवता शरीर में वेग देते हैं। जब वेग दिया तो हमने कहा ठीक है अब ये कुछ पूर्ण हो जाएगा, तब हमने फिर इसको कपाल की क्रिया आगे देना चाहिए। शांत कर दिया, शांत कर दिया, शांत कर बिल्कुल शांत शांत। शांत हो गया, शांत बिल्कुल शांत। पानी तो
अरे माँ चरण छूओगे बस शांत। अरे माँ जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिन्होंने ये तंत्र मंत्र मेरे को सिखाया, तो उनको मैंने ईश्वर से भी अधिक प्यार किया और ईश्वर से भी अधिक सेवा किया। उनको साक्षात मैंने ईश्वर माना। The metropolis is very far from his life in the cremation grounds, but he's familiar with its people, its ways, and its streets. What began as a trip eastwards to Calcutta to meet old friends has taken Ramnath further and further away from his life as an Aghori. A 1,000 miles away from his guru, Ramnath is free to fashion his own version of the Aghori life, this time in the red light district of Calcutta. गोमा रुट्टी का दो। कहाँ से आना है? किसी के चलना हो तो चलना, कभी घूम के आना हो। इनको तो खुशी होती है कि हमारे घर में साधु आया रोटी खाने के लिए। कोई हम ऐसा बुरा कर्म करेंगे तब तो हमको आत्मग्लानि होनी चाहिए कि मैंने उस पाड़े में जाकर मैंने गलत काम किया है, बेस्याओं के पास में जाकर। हम तो खुशी से आए, रोटी मांगा, गोमा रोटी दे दो। माँ, इसको तो माँ बोलने में भी दुनिया शर्म खाती है, हम तो फिर भी माँ बोलता है, हम बहन बोलता है। तब हमको इतना प्रेम से लोग रोटी बिठाया खिलाता है ना। कुछ ना खाओ देखो। Somewhere on his apparently aimless journey, Ramnath's path draws him homewards. From Calcutta, he's on his way to his village in eastern Bihar, one of the poorest parts of India. Contact with the family is strictly forbidden to the sadhu, more so to the Aghori. But something inside him has brought Ramnath home. रोती है तू। बस ना, बिना कपड़े वपड़े भेज ले सर। हैं? इधर उधर अब जाना पड़ता है ना। अब मेरे को तो कोई अब मैंने कहा ना भाई कि जहाँ भी आप रहिए, जिस नई जगह पर जाइए वहाँ से काट ला दीजिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे साधु देखा मैंने जो अपने घर में नहीं जाते हैं, और मेरे अंदर में आंतरिक प्यार है अपने माँ बाप से और भाई बहनों से। इसलिए मैं कहीं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ तो
तो एक चक्कर अपने घर चला आता हूँ। ये हमारे अपने ममता की बात है ना। और ममता भी जो हमारा जो अघोर साधना है उसके अंदर में भी ममता जो है वो भी अपना एक मायना रखता है ना। और बड़े बड़े संत दुनिया के अंदर में हुए हैं और सब आदमी अगर इसी माया जाल के अंदर में माँ बाप के चक्कर में अगर फंसा रह जाए, अगर भाई बहनों के चक्कर में फंसा रह जाए, देन वो प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकते थे। भैया आपको नहीं आते हैं यहाँ पर, हम लोग आपके लिए बहुत तंग रहते हैं। माँ भी आपके लिए बहुत चिंतित रहती है। चिंता किसको किसके लिए नहीं होती है बताओ। तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी तुमको चिंता लगी है, जो समाचार पिताजी लिख रहे हैं उनको भी चिंता लगी है ना। हमको भी अपनी चिंता लगी हुई है, ठीक है कि नहीं है। तो हम भी तो किसी न किसी सर्विस में ही लगे हुए हैं, ये भी हमारे लिए सर्विस है। तो कहते हैं कि मिल गई है नबी की गुलामी तो क्या अर्श आलम बगावत नहीं चाहिए। तो ये बगावत नहीं है हमारे लिए, तुम्हारे लोग के लिए है ना, कि इतना श्रद्धा और प्रेम अपने दिल में है, तुम्हारे लोग से इतना प्रेम है कि मैं आता हूँ, ठीक है कि नहीं। बस Ramnath's visit to Balachakya village coincides with a major festival. The whole community gathers to celebrate Chhat. It's a harvest festival, when women worship the elements and pray for the long life of their loved ones. Ramnath's mother too offers a prayer. रामनाथ, घर नवरात्रों की पूजा रखी हुई है, घर पे पहुंचिए आप। यहाँ पूजा समाप्त हो गई आपकी, अब घर पे आप आइए। Guru Satya Narayan is a 52-year-old building contractor who is renowned for his healing powers. As a young man, he spent almost 20 years as an Aghori. He says it is as a result of this training that the gods gave him the power to deal with evil spirits. इससे पहले हम नहीं जानते थे भूत प्रेत क्या होता है,
लेकिन जब वास्तव में हमने देखा, अपने ऊपर गुजर गई है, तब हमको मालूम है कि वास्तव में सब चीज़ है, भूत प्रेत सब चीज़ होती है। खून की उल्टी भी हुई है कई दफ़े, छाती में दर्द भी हुआ, सारे बदन में खुजली टाइप का भी मतलब होता था। तो ये चीज़ किसी भी प्रकार से सता सकती। Now on the festival of Navratre, he hosts a healing session for the disturbed and the possessed. डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बहुत इलाज किया, लेकिन इसका कोई आराम नहीं हुआ। खास करके वो ज़्यादातर वो सोने की नींद की दवाई देते थे, उससे कभी भी नींद नहीं आती थी। और जब से हमने यहाँ दिखाया है, तब से काफ़ी राहत है और नींद भी आ रही है। चलिए आइए आप। पीछे बाल चलो अपनी मुक्ति चाहता है। कितने हो आप? कितने जने हो आप? 3 जने हो? कौन कौन? मसान है। अच्छा, कैसे आया तू? हाँ, किसने भेजा? इसकी जेठानी ने। अच्छा, सच बोलेगा ना तू? हैं? देख लो, नहीं तो नरक भोगेगा, घोर नरक भोगेगा। बोल, जल्दी बोलो, कहाँ जाना चाहते हो अपनी जगह? 1 वचन 2 वचन 3 वचन में फिर नहीं आऊंगा। अगर आया तो नरक भोगेगा, कुंडी नरक। ना, मैं नहीं आऊंगा। यहाँ से ले लो, देखो कहाँ हो। One by one, the Guru seizes the 3 evil spirits and confines them in a magic circle. Invoking good powers symbolized by the clothes, he overwhelms the spirits and casts them back from where they came. Later that night, the 2 return to the cremation ground to thank the forces who helped them during the day. Each offering to the pyre is symbolic, a sacrifice made to a particular god. मंत्र पढ़ो शिव बाचा से, शिव बाचा काट के दो, माँ काली को दो। Aghoris are the sadhus of darkness. Most Indians know little about them and would rather keep it that way. Their association with cremation grounds and their practices have led to fears about cannibalism and, in the past, with human sacrifice. आग जल भंडा जल माता मेरी सिंह करे माता मेरी किचन सबक साचा जय माँ।
Tonight's ritual ends with an offering to Bhairav, who represents Shiva in his most terrifying form. He must be placated by offerings of meat and strong alcohol. छोड़ो बोतल, छोड़ो नीचे, छोड़ो, हाँ छोड़ो, यहीं से लेके आके घेरो, अरे घेरो पूरी क्या, पूरी उल्टो, उल्टो इसे और नीचे करो, धार को रोकते क्यों, धार रोको मत. With no fixed home, no particular place of worship, and no community that he belongs to, the Aghori is free to move around. Wherever he goes, he knows he will find cremation grounds. टिकट नहीं है सर. टिकट नहीं है क्यों? बाबा है. अरे बाबा है तो बगैर टिकट चलोगे? आगे नहीं जाएंगे, आप अगले स्टेशन उतर के. बाबा सोच करके हम आपको छोड़ रहे हैं. इसके लिए तो धन्यवाद है आपको कि बाबा, लेकिन अब आप आगे नहीं जाएंगे. Ramnath is no stranger to Calcutta. In his wanderings, he once spent a few years living with other sadhus on the banks of the Hooghly River. Ramnath's father is a journalist and writes for a daily newspaper in the city. He has never really accepted his son's decision. रामनाथ जी बचपन में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लड़के थे. मुझे तो उनसे बड़ी बड़ी आशाएं थीं. पढ़ाई में भी उनकी बड़ी अभिरुचि थी. विलक्षण इतने कि एक बार बता जो दिया उसे तुरंत ग्रस्त किया और फिर दूसरा पाठ हमसे लेने के लिए तैयार हो गए. उसकी तेजी देख करके मुझे उम्मीद थी कि यह कोई निश्चित बड़ा अधिकारी बन सकेगा, बड़ा कंपटीशन फेस कर सकेगा. दूसरा, इसका घर से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अघोरी जो है वो सिर्फ शमशान से ही संबंध रखता है, मित्रों से या घर से इसका कोई संबंध नहीं रहता. तो ये अघोरी को तो उचित नहीं है ये मार्ग अपनाना. अघोरी का मार्ग तो शमशान है. वो शमशान में रहेगा तो अघोरी कहलाएगा. अगर इधर उधर घूमेगा तो कौन उसे अघोरी कहेगा, क्योंकि साधु को तो घर से कोई संबंध ही नहीं. दीक्षा के बाद जो संबंध है घर का वो छोड़ देना चाहिए. चल जाना है ना, फिर कब आएंगे कब नहीं. कहाँ देगा? अभी तो घूमे फिर हरिद्वार पहुंचेगा. फिर अघोर साधना से मुझे स्वयं वितृष्णा रही है. मैं उसे बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता, इसलिए कि उसमें तंत्र साधना की बात होती है. उसमें अनिष्ट की संभावना ज्यादा और इष्ट की संभावना कम होती है. वैसे मैं जानता भी हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति अघोरपन से शायद असंभव सा है. कौन कहता है कि पथ भ्रष्ट हो गया, कौन कहता है कि मैं अपने भक्ति के रास्ते से हट गया. लेकिन ऐसी बात है नहीं. मेरे को सिर्फ लगन है अपने मोक्ष की प्राप्ति, भगवान शिव की प्राप्ति. कि सिद्धियों का जो प्राप्ति होती है, इसमें मैं का अहंकार आने से जो है वो पतन का रास्ता बन जाता है, जो कि इसमें रामनाथ में आया. जब इन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी, जितनी ये सीढ़ियाँ चढ़ गए थे उतनी ये सब नीचे उतर के आ गए. अब जो है जब हम इनको देखते हैं
तो इनके जीवन में हमें अंधकार दिखता है, हम निराश हो जाते हैं कि भगवान इसके जीवन में अंधकार ना दे और इसको सत्य मार्ग दे। और भविष्य में बस वही मसान में रहो, भगवान भोलेनाथ का भजन करो, यही मेरा भविष्य है। इसके आगे नहीं हाजिरी भरना है, नहीं नौकरी, न चाकरी, न पैसा, नहीं किसी से लोभ, न मोह, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक ये समझे कि लालची है, अघोरी बाबा लालची है, तो लालच एक ही बात की है, ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, बस यही अपना एक अगर लोभ अगर इसको समझा जाए तो यही लोभ है और दूसरा कोई लोभ नहीं। ना चाहिए संपत्ति, ना चाहिए किसी की रोटी, गंगा जल भी पी के रह जाऊंगा, इसमें किसी का टैक्स भी नहीं लगता।